Okay, so let us start. Okay, so in this class we'll be discussing some MCQs. Okay, so there are total 35 MCQs of 1 marks each. Okay, and you have to submit it today only before 6 p.m. Where you need to submit? You need to submit here. See the slot I have already provided. This one, मैम स्क्रीन 17.5. शेयर अकॉर्डिंग नहीं है अभी. Okay, 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 wait, wait. Now is it visible, right? Yes. Yes, ma'am. See, here you need to submit the assignment. Okay, in the class assignment, and this is the assignment for the questions that I have given. Okay, after the class, by tomorrow I will give you the answers key also, but I want you to solve these questions. Okay, I'll be helping you in this lecture. Actually, I will ask you, you need to answer. Okay, so everybody should interact with me. Okay, for solving these answers. See, the first question is flexible pavement. Flexible pavement distributes the wheel load. So please select out of these 4 options which is the appropriate answer. So the flexible pavement distributes the wheel load directly to the subgrade through a set of layers to the subgrade, through structural action, or none of the above. So what should be the answer? कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? It is distributed directly over the subgrade, or it is distributed through the set of the layers then to the subgrade, or through structural action, or none of the above. Which is the appropriate answer? मैम बी. Ma'am, option B. Acha, 2 of you have given option B. What about the others? बाकी की बोल बे बोलो. B. Ma'am, B. B. Ma'am, B. B. Okay. So D, let's ma'am. D. D ना B? क्या बोल रहे खुनी? So your answer will be B, because I have told you that flexible pavement, or whether it is a pavement, rigid pavement, it is actually the layered structure. Okay, तो ये सिर्फ सिंगल लेयर नहीं होता है, हम लोग मल्टी लेयर से करते हैं. बर्मिस्टर ने 2 लेयर बोला, ठीक है. There are further multiple layers, 3 layers. Okay, multi layer. So it is distributed from लेयर टू लेयर. ठीक है, ऐसे लेयर टू लेयर ये डिस्ट्रीब्यूट करते करते जाएगा. ओके, सो ऐसे लेयर टू लेयर डिस्ट्रीब्यूट. फाइनल जो आता है दैट इज द सबग्रेड. ओके, तो ये जो तुम्हारा व्हील लोड है, सो इट इज ट्रांसफर्ड लाइक दिस, लेयर टू लेयर. ओके, तो ये जो लोड है ये ऐसे जाके ये जो फाइनल लेयर है दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन. इसको फाउंडेशन भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर बेस, और सॉरी फाउंडेशन, और एंड इट इज आल्सो नोन एज द सबग्रेड. ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज बी. वेरी गुड. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है. नाउ टेल मी, Burmister's method, second वाला क्वेश्चन, Burmister's method can be considered as a special case of Boussinesq's theory. Is it true or false? Burmister method can be considered as a special case of Boussinesq's theory. True है कि false है? ट्रू. ट्रू और फॉल्स? देखो ये क्या था, बॉसिनेक्स क्या बोला था? सिंगल लेयर बोला था. ठीक है, उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने 2 लेयर्स डाला, विच इज एज्यूम बाय द बर्मिस्टर. ठीक है, मॉडिफाइड बाय द बर्मिस्टर. क्यों? इफ वी प्रोवाइड सिंगल लेयर तो देखो 30% रिडक्शन. दिस इज द रिडक्शन. यहाँ पे ज्यादा है, जैसे जैसे हाइट डेप्थ नीचे जाएंगे तुम्हारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस होता होता जाता है. फॉर अ सिंगल लेयर 30% रिडक्शन कौन सा डेप्थ में हो रहा है? when h is twice of radius. कॉन्टैक्ट रेडियस जो होगा उसका ट्वाइस जब डेप्थ होता है तब जाके ये
नीचे जाके 30% में पहुंचता है। वेरएज इन बर्मिस्टर H इक्वल्स टू A में जाके देखो 30% रिडक्शन हो रहा है। सो सिंपली वी कैन से दैट इसमें ज्यादा लेयर देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कम लेयर से ही काम बन जा रहा है। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा लेयर नहीं, थिकनेस एक्चुअली, ओके, थिकनेस ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकनेस देना चाहिए, तब जाके 30% रिडक्शन होता है। ओके, सो बेसिकली ये है सिंगल लेयर या वन लेयर, और उसका मॉडिफाइड जो किया था वर्मिस्टर ने 2 लेयर। दिस इज बोसिनेक्स, दिस इज बर्मिस्टर। ओके, सो टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू की फॉल्स है? बर्मिस्टर्स मेथड कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ बोसिनेक्स थ्योरी, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू तो ट्रू হবে। True, true. Okay, so the answer is true. Sorry. Okay, the answer is true. Very good. Now what data is required for computing thickness of pavement by group index method? चलो group index का कहाँ पे गया था हम लोग का है, sorry, ग्रुप इंडेक्स का क्लास वर्क चलते हैं 802D। अच्छा तुम लोग ही खुद से बोलो तो पहले ये आंसर कौन सा होगा? What data is required for computing thickness? Group index is also one kind of methodology used for calculating thickness or designing pavement thickness, flexible pavement thickness. ठीक है, तो बोला है कि ग्रुप इंडेक्स मेथड में क्या क्या हमको चाहिए, जरूरत है? A, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रुप इंडेक्स, B, ट्रैफिक रेट एंड ग्रुप इंडेक्स, C, ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड ग्रुप इंडेक्स, and D, traffic index and group index. ম্যাম বলছি কি একটু করে আমার লেট হয়ে গেল, এর আগে একটু কি করেছেন একবার জাস্ট বলে দেবেন? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हील लोड। ओके, सो वी नो पेवमेंट इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, सो ये लेयर बाय लेयर ट्रांसफर करता है लोड को। ओके, सो द ऑप्शन इज बी, थ्रू द सेट ऑफ लेयर्स। ओके, See, Burmeister method is considered as a special case of Boussinesq theory. हाँ, yes, true है ये. Okay, because Boussinesq is for one layer and उसको modify करके 2 layer में कर दिया है. 2 layer करने से क्या होता है, pavement का thickness हमको ज्यादा देना जरूरत नहीं पड़ता, because देखो 2 इंसान लोड रह रहा है और एक ही इंसान लोड रह रहा है, ठीक है, तो दोनों का स्ट्रेंथ अलग होता है, प्रॉपर्टी अलग होता है, तो वो ज्यादा लोड ले सकते हैं, ठीक है। वेरस अगर सिंगल को दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको मोटा करना चाहिए, एकदम हेल्दी पर्सन देना चाहिए, तब जाके हमको वो लोड कैरी कर सकता है। इसीलिए Boussinesq वन लेयर है, उसमें क्या हो जाता है कि रिडक्शन विल बी एट अ वेरी लार्ज डेप्थ, वेरएज बर्मिस्टर 2 लेयर में सिंगल में क्या बोलते हैं, कम डेप्थ में हो जाता है। सो वी कैन से दैट वन लेयर को 2 लेयर में कन्वर्ट कर दिया है बर्मिस्टर ने। ओके, एंड द वन लेयर वाज डिस्क्राइब्ड बाय Boussinesq थ्योरी एंड 2 लेयर बाय बर्मिस्टर थ्योरी, व्हिच इज ट्रू। ये तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड या विच डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग थिकनेस ऑफ द पेवमेंट बाय ग्रुप इंडेक्स। तो वहाँ पे देखना एक चार्ट हमने प्रोवाइड किया था, राइट? चलो ग्रुप इंडेक्स चलो देखते हैं। देखो ग्रुप इंडेक्स में वी हैव प्रोवाइडेड चार्ट्स, ठीक है। कभी कभी ये सब भी जानना जरूरी होता है। ओके, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 0 से 20 होना चाहिए, तो कम होगा तो वो गुड सॉइल होगा, ठीक है, ज्यादा होने से बैड सॉइल होता है। तो गुड सॉइल मतलब थिकनेस ऑफ पेवमेंट विल बी लेस, वेयरएज थिकनेस ऑफ पेवमेंट विल बी हाई फॉर वेरी पुअर सॉइल। ये तो चलो ये दूसरा है। देखो दीज आर द चार्ट्स व्हिच वी नीड, ये जो चार्ट है ये वाला हमको ग्रुप इंडेक्स मेथड में लगना चाहिए, लगेगा फॉर डिजाइनिंग द पेवमेंट थिकनेस, टोटल पेवमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल लेयर थिकनेस, ठीक है। तो ये चार्ट में क्या क्या रहा है, ये चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये चार्ट में तुमको दिखाई देगा, कहाँ गया, सी क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, राइट? ये जो ट्रैफिक का मतलब है क्या, ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ CVPD, कमर्शियल व्हीकल पर डे, ठीक है। तो हमको ट्रैफिक वैल्यू लगेगा और क्या चाहिए, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू लगेगा, तब जाके यूजिंग दिस टू डाटा वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक डाटा किस हिसाब में आएगा, देखो सब में तुम्हारा ग्रुप इंडेक्स है, सब ऑप्शन में ग्रुप इंडेक्स है, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू तो लगेगा ही, राइट? सी यू कैन सी हियर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू तो लग ही रहा है हमको। ओके, ये देखो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू तो लगेगा ही थिकनेस निकालने के लिए, और चाहिए ट्रैफिक। अब ट्रैफिक कौन किस में आ रहा है, ट्रैफिक का
वैल्यू, Traffic volume. वॉल्यूम, रेट, इंटेंसिटी ना इंडेक्स। सीवीपीडी मैम क्या है? वॉल्यूम लग दो। हाँ, सीवीपीडी क्या है? दैट इज द वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, कमर्शियल व्हीकल पर डे। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर दिस वन, ए। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रुप इंडेक्स, वेरी गुड। दूसरा चलो, ड्यूरिंग अ सीबीआर टेस्ट द लोड सस्टेन्ड बाय द रिमोल्डेड सॉइल ম্যাম ওটা स्पेसिमेन। ট্রাফিক ভলিউম এন্ড গ্রুপ ইন্ডেক্স হবে না? हाँ, ये तो 3। ओके, क्लियर? ম্যাম। ट्रैफिक वॉल्यूम। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। ड्यूरिंग द सीबीआर टेस्ट the load sustained by the remolded soil specimen at 5 mm penetration is 50 kg. Calculate the CBR value. तो CBR का फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला क्या था CBR का? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? इट इज अ रेशियो, ठीक है। किसका रेशियो? आइदर लोड का रेशियो या क्या बोलते हैं, प्रेशर का रेशियो, ठीक है। तो किस किस का रेशियो, किस किस कौन सा একটা कौन सा লাস্ট लोड का? কোশ্চেন করবো ম্যাম? बोलो बोलो। বলছে কি যে এইটা কি আপনি মানে আমাদের ওই গুগল ক্লাসরুমে हाँ কি हाँ দিয়ে हाँ দেবেন? हाँ, दिए दिए छी हमें, सो यू नीड टू सबमिट इट। ओके, गूगल আচ্ছা क्लासरूम আচ্ছা में আচ্ছা। ऑलरेडी दिया है ये वाला स्लॉट भी दे दिया है, यू नीड टू सबमिट। सी ये वाला है, ओके, जैसे ये सी असाइनमेंट। ओके, ও ঠিক है मैम। तो बोलो व्हाट वाज द फार्मूला सीबीआर? ये वाला 5 mm का चाहिए। देखो दो टाइप का होता है, 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए एक रेशियो निकालना है और 5 mm प्रेशर के लिए डिफ्लेक्शन के लिए प्रेशर का रेशियो निकालना है। ओके, सो लेट अस सी कौन सा है फॉर्मूला। सो दिस आर द फॉर्मूला, देखो, कैन यू रिमेम्बर एनीवन? ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, लोड और प्रेशर अंडर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 और 5 mm ऑफ सैंपल, ऊपर में सैंपल का होगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, लोड और प्रेशर अंडर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 और 5 mm ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीगेट, ठीक है। तो दिस वैल्यू, दिस लोड और प्रेशर विल बी नोन टू यूज, मतलब तुमको याद रखना ही पड़ेगा। सिर्फ क्या देगा, ये वाला ऊपर वाला वैल्यू दे देगा, जो कि यहाँ पे दिया है सिर्फ कितना है, 50 kg बोला है। कितना के लिए? 5 mm पेनिट्रेट करने के लिए कितना लोड लगेगा, केजी में दिया है। सो ये लोड दिया है 50 kg, ठीक है। तो इसीलिए देखो इन द क्वेश्चन क्या है, लोड भी दे सकता है या प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दे सकता है। ओके, जब लोड में करेगा तो यहाँ पे एक वैल्यू देना चाहिए, लिखना चाहिए। जब प्रेशर में रहेगा तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखना चाहिए। ओके, तो देखो दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो ये तुमको याद रखना है। For standard aggregate it won't be given to you, only for the sample value load या pressure दिया रहेगा। ओके, और परसेंटेज है इंटू 100 कर देना है। तो क्या है, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज, ठीक है। तो लोड अंडर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm के लिए इतना केजी पकड़ना है स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लिए, ठीक है। एंड लोड अंडर पेनिट्रेशन ऑफ 5 mm के लिए इतना केजी पकड़ना है, ठीक है। अगर प्रेशर में दिया रहेगा तो 2.5 mm डिफ्लेक्शन के लिए प्रेशर कितना है स्टैंडर्ड एग्रीगेट में, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड फॉर 5 mm it is 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी यू नीड टू रिमेम्बर दिस 4 थिंग्स। अगर ये दोनों भी याद कर पाओगे, ठीक है, एंड इफ यू नो द डायमीटर ऑफ द प्लंजर यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वन। तो देखो ये है, लोड है कितना 1370, 2.5 के लिए लोड है 1370 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द प्लंजर, जहां से लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना है π/4 d स्क्वायर। तो d है डायमीटर ऑफ द प्लंजर 5 सेंटीमीटर। तो करके देखो, ये भी कैलकुलेट कर पाओगे, ये भी कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, इफ यू रिमेम्बर दिस टू एंड दिस वैल्यू। सो इन ब्रीफ अगर बोलेंगे दिस इज द केस, ठीक है। तो सीबीआर ऑफ 5% निकालने के लिए बोला है, 5 mm पेनिट्रेशन के लिए निकालने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे डाटा में दिया है फॉर 5 mm पेनिट्रेशन। देखो क्वेश्चन में दिया ही गया है फॉर 5 mm पेनिट्रेशन, ठीक है। तो सैंपल में अगर हम लोड दे रहे हैं 50 kg तो पेनिट्रेशन कितना हो रहा है 5 mm हो रहा है। तो 5 mm के लिए लोड कितना लग रहा है 50 kg। सो कैलकुलेट द सीबीआर।
तो क्या होगा मैम बोलो? 2.4% হবে। यस, वेरी गुड, 2.4%। कुछ नहीं, देखो ये वाला इक्वेशन यूज करो। P or the load for 5 mm penetration is 50 and we know for standard aggregation, ये सैंपल में और स्टैंडर्ड एग्रीगेशन में होगा 5 mm पेनिट्रेशन के लिए 2055 kg। तो 50 बाई 2055 kg इंटू 100 करके देखो कितना आएगा। ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर, मतलब 50 बाई 2055 ओके इंटू 100। सो क्या क्या देखना है हमको डाटा में, ये देखो 2.5 है ना 5 है। 2.5 होने से यहाँ पे तुम्हारा कौन सा वैल्यू आएगा? 1370। ठीक है, अगर लोड में है तो, नहीं तो अगर केजी, ये वाला अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहता तो क्या होता तब? ये वाला इक्वेशन। ठीक है, जितना भी वैल्यू दिया है डिवाइड बाय 105 इंटू 100। क्लियर? 2.4% आएगा, देखो ये। Yes, ma'am. ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो हो जाएगा, इतना याद करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लोड याद करो, 5 mm का कितना है, 2.5 का कितना है, बस। ओके, फिफ्थ, if the CVR value obtained at 5 mm penetration is higher than that at 2.5 mm, जनरली क्या होता है कि CBR 2.5 विल बी ग्रेटर देन CBR 5। एक्यूरेट मतलब सही से अगर करोगे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ करेक्ट है, नो एरर है, तो क्या हो जाएगा? CBR ऑफ 2.5 मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ, इफ द CBR वैल्यू ऑब्टेन एट 5 mm इज हायर देन एट 2.5 mm, तो वहां पे कुछ एरर है उसका मतलब। सो व्हाट वी हैव टू डू? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, लेट अस सी, क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। देन द टेस्ट इज रिपीटेड। हम बोले थे ना अगर ऐसा केस होता तो रिपीट करते, लेकिन इवन आफ्टर रिपीटेशन एंड इफ चेक मतलब करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, दैट इज CBR एट 5 mm इज अगेन ग्रेटर देन, रिपीट के बाद भी देख रहे हैं इट इज अगेन ग्रेटर देन दिस वन, देन कौन सा वैल्यू हमको लेना है? ओके, एंड इफ द चेक टेस्ट रिवील्स सिमिलर ट्रेंड, मतलब यही फिर से आ रहा है कि 5 mm इज ग्रेटर देन 2.5, देन द CBR वैल्यू इज टू बी रिपोर्टेड एज द कौन सा? एवरेज ऑफ 5 and 2.5 mm penetration, या हायर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm, या हायर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 5 mm। बोलो। जनरली CBR तुम्हारा 2.5 मस्ट बी ग्रेटर देन CBR होना चाहिए, अगर नहीं होता तो क्या होता है? ये होता है जनरली। इफ इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस देन रीटेस्ट करना है। अगेन वी आर सेइंग कि यही रिलेशन आ रहा है तो वी हैव टू टेक द ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर ম্যাম कहाँ पे ডি है? হবে। यस, सो हायर वैल्यू ऑब्टेन एट 5 mm पेनिट्रेशन। ओके, ठीक है, अब ये भी सेम है, सेम पढ़ो, बोलो क्या होगा? ये बोलो ম্যাম option. অপশন এ হবে। वैल्यू ऑफ CBR एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इक्वल्स टू m है, CBR एट 5 mm पेनिट्रेशन इज इक्वल्स टू n है, देन CBR वैल्यू इज अडॉप्टेड विदाउट रिपीटेशन ऑफ द टेस्ट व्हेन, हम बोले थे CBR वैल्यू ऑफ 2.5 मस्ट बी ग्रेटर देन CBR वैल्यू ऑफ 5, तो m मस्ट बी ग्रेटर देन n। सो ऑप्शन ये 1 है। ओके, ये गलत हो गया, दिस इज द राइट आंसर। ओके, m ग्रेटर देन n। ओके, अब ये बोलो द टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट थिकनेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, या आप बोल सकते हैं हाउ मेनी लेयर्स? कितना लेयर से बनता है टिपिकल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट? सबसे वाला कौन सा होता है, बोलो सबसे वाला? 5. 5? ম্যাম 4। 4? ম্যাম 3। তো সব অপশন বলে যাচ্ছ। Actually ম্যাম আমিও বলেছি তো। ম্যাম 3 হবে তো। देखो फर्स्ट में क्या होता है? सरफेस कोर्स। ठीक है, सरफेस कोर्स के अंदर अगर हम दो भाग कर सकते हैं, ओके, जनरली इट इज सिंगल, मतलब एक ही वो है, एक ही लेयर है, लेकिन इसको हम दो भाग में कर सकते हैं। तो इसको हम दो भाग नहीं कंसीडर, इसको दो लेयर नहीं कंसीडर करेंगे, दिस इज सिंगल लेयर। ओके, टॉप सरफेस जो है दैट इज बाइंडर कोर्स एंड वेयरिंग कोर्स, सॉरी वेयरिंग कोर्स एंड बाइंडर कोर्स मिलाकर ही सरफेस कोर्स बनता है। ओके, अब देखो उसके नीचे क्या होता है? बेस होता है। ओके, बेस, देन कम्स द सब बेस।
विच इज एक्टिंग लाइक अ ड्रेनेज लेयर। ड्रेनेज मतलब पानी अगर घुसेगा तो ये यहाँ से होके वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो स्लोप की वजह से इधर, मतलब बड़ा बड़ा एग्रीगेट है तो पोर्स ज्यादा होने से वो, और स्लोप ही होने से क्या होता है, ये ट्रांसवर्स स्लोप रहता है, कैम्बर रहता है, तो उसकी वजह से ये स्लोप होके इंटीरियर ड्रेनेज में चला जाता है। सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सरफेस, सॉरी क्या बोलते हैं, ड्रेनेज कोर्स भी बोलते हैं सब बेस को, ठीक है। तब तुम्हारा आता है पेवमेंट सबग्रेड, जिसके नीचे होता है सबग्रेड, ओके। एंड वी नो पेवमेंट किसको बोलते हैं, ऑल द लेयर्स अबव द सबग्रेड को ही हम पेवमेंट बोलते हैं। तो सबग्रेड को इंक्लूड मत करना पेवमेंट में, ठीक है। सबग्रेड इज द फाउंडेशन, उसके ऊपर जितना भी लेयर है उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो टोटल कितना होता है इन टिपिकली, टॉप या सरफेस कोर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, उसके अंदर में दो भाग हो सकता है, बाइंडर और वियरिंग कोर्स। फिर आता है बेस कोर्स, देन सब बेस, देन सबग्रेड। सबग्रेड के ऊपर जितना भी लेयर है उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो कितना आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? मैम 3। तो आंसर इज 3, ओके। हाँ, the two layer system for analyzing stresses in the pavement is developed by, Barmester. yes, आज ही तो पढ़ा हम, दो लेयर पढ़ते जा रहे हैं ना, बर्मिस्टर थ्योरी, ओके। सो आंसर इज बर्मिस्टर। अब ये वाला भी तुम लोग बोल सकते हो, आज ही पढ़े हम। What is the equation for deflection under flexible pavement according to Burmister's method? या इधर लिख सकते थे, पेवमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लिख सकते थे फ्लेक्सिबल प्लेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्लेट होना चाहिए था यहाँ पे। तो बोलो, एक है रिजिड, हाँ 1.5। इफ दे हैव आस्क यू द रिजिड प्लेट, अगर बोलता है या प्लेट लोड टेस्ट बोलता है तो ये वाला, ओके। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन अंडर द व्हील लोड होना चाहिए, अंडर द व्हील लोड इन द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो ये वाला होगा 1.5, ओके। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब देखो, ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया है, सिंपल है। फॉर्मूला क्या था, बोलो फॉर्मूला बोलो, अभी फर्स्ट क्लास में किया था। The plate bearing tests were conducted with 30 cm dia on a soil subgrade. The pressure yielded at 0.5 cm deflection are 1.25 kg per centimeter square. R नहीं होगा, ये is होगा, ठीक है। The deflection factor F for the single layer is 1. Calculate elastic modulus. ये फर्स्ट स्टेप है, बर्मिस्टर लेयर का थ्योरी का मेथड का फर्स्ट स्टेप है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या बोले थे, कौन सा डिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करना है? We are conducting plate load test. So 1.18, okay. So 1.18 यहाँ पे पॉइंट है P A F2 या F, ठीक है, F2 या F लिख सकते हो, बाई ES। तो तुमको क्या क्या दिया है, डेल्टा दिया है, P दिया है, A दिया है। A कितना है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डाया है तो A इज द रेडियस ऑफ द प्लेट 15 सेंटीमीटर। F2 फॉर सिंगल, फर्स्ट स्टेप में सिंगल लेयर कंसीडर करना है, सो दिस का वैल्यू 1 होता है। इफ नॉट प्रोवाइडेड एज्यूम इट एज 1, बट यहाँ पे दे दिया, देखो F इज फॉर सिंगल लेयर विच इज 1, इट इज गिवन। सो SES का वैल्यू देखो आएगा 44.2 kg, कैलकुलेट करके देख सकते हो, ओके। क्लियर? ये हम ज्यादा और पढ़ा नहीं क्योंकि फर्स्ट क्लास में समझा दिए थे, ओके। Yes, ma'am. বাকিদের পুলক তো সে তখনও আনসার করেছিল, বাকিদের বুঝেছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ডাউট নাই তো? না ম্যাম। Okay. See, as per IRC 37, CBR method is adopted for design of flexible pavement. ये flexible pavement का कौन सा पार्ट हम लोग डिजाइन करते हैं? बार-बार Thickness. yes, thickness, okay. तो आंसर इज थिकनेस, वेरी गुड। दूसरा क्या है, the method of design of flexible pavement as recommended by IRC CBR is, method. yes, it is CBR actually, method. yes, modified CBR method, ठीक है। तो ये CBR method ही बोल सकते हो। Now VDF is defined as, क्या होता है बोलो ये? VDF is defined as, इसका ये है, okay. So VDF is defined as what? Equivalent number of standard axle per commercial vehicle, या equivalent number of standard wheels per commercial vehicle, या number of axles per commercial vehicle, या number of none of the above. फॉर्मूला क्या था VDF का?
मैम ऑप्शन ए हवे। यस ऑप्शन ए, यस WI था ना, WI बाई WS टू द पावर 4 इंटू इंटू फ्रीक्वेंसी था, या V भी बोल सकते हैं, ओके, या FI, इसका समेशन। ओके, तो देखो ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सल, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड एंड दिस इज द मीन एक्सल लोड। ओके, सो ये क्या है, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड पर कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला दिया गया है। ओके, तो योर करेक्ट आंसर विल बी VDF इज ए। ओके ओके, चलो ये वाला करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट, सी what would be the ESWL of a dual wheel load assembly of 4088 kg। ठीक है, 4088 kg है, ऐसा 2 व्हील है। ठीक है, बड़ा करते हैं, चलो ठीक है, तो तो बोला है कि एट द थिकनेस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डी तुमको दिया गया है, जेड दिया गया है, ये पेवमेंट का टॉप सरफेस है। ठीक है, थिकनेस इज गिवन टू यू, दैट थिकनेस इज कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ देयर वाज अ रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप था कि लोड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, डुअल व्हील असेंबली का लोड, ओके, एट डेप्थ इक्वल्स टू दिस डेप्थ। ओके, ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होना चाहिए, D/2, D/2। ओके, जेड इज यहाँ पे क्या है, D/2 जब होता है तब तुम्हारा क्या होता है, ESWL विल बी, ESWL विल बी क्या होता है, अगर ये तुम्हारा व्हील लोड है तो ये है, ये है। ओके, तो इसको अगर हम लिखेंगे PD, PD, ESWL विल बी PD। ओके, और जब Z इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ S हो जाता है, सो योर ESW विल बी ट्वाइस ऑफ PD। ठीक है, तो बोलो क्या क्या है, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर सेंटर टू सेंटर, दिस इज S। ओके, S है ये वाला, दिस इज S, और ये जो इनर टू इनर है, दिस इज D। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज S एंड इनर टू इनर इज D। देखो D कितना है, 8 सेंटीमीटर है, सेंटर टू सेंटर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तुम लोग फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो ESWL का, या सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल दिया है। मैम ऑप्शन बी हवे। D, B ना हाँ D। मैम, बी। अच्छा, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज PD वैल्यू। 4088 kg। नो, 2044। सी व्हील लोड असेंबली ऑफ 4088, मतलब दोनों मिलकर 4088 है, तो इंडिविजुअली कितना है, इसका हाफ होना चाहिए, यही बोला था। 2044। हाँ 2044। ठीक है, 2044 है। ओके, सो 2044। अब देखो, नाउ टेल मी, Z इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर में तुमको ESWL निकालना है, Z गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो D इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम 8/2 बोल सकते हैं ना, इसको हम 8/2 बोल सकते हैं 4 को। नाउ 8/2 इज व्हाट, D/2 भी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो, कैन वी राइट इट लाइक दिस, सो आवर Z इज व्हाट, D/2, राइट। तो ये एक केस आ रहा है, so Z is 4 सेंटीमीटर at depth equals to 4 सेंटीमीटर, which is nothing but the D/2। क्या बोले थे, Z equals to D/2, ESWL क्या होगा, सिंगल PD होगा। 2044। हाँ, so PD कितना है, 2044। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन तुम्हारा आंसर विल बी 2044। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको 50 सेंटीमीटर लिख देते हैं तब क्या होता, बोलो,
ESWL क्या हो जाएगा? And we also know that for Z equals to twice of S, ठीक है, your ESWL will be twice of PD equals to 2PD. ये इक्वेशन भी हमको पता है, रिलेशन भी हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के जगह पर तुमको क्वेश्चन में अगर दिया रहता 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड ESWL एट Z इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर फॉर दिस डाटा, तब क्या हो जाएगा ऑप्शन? 4088. 4088, क्योंकि देखो 5 सेंटीमीटर इज व्हाट ट्वाइस ऑफ 25, 2 इंटू 25 भी तो है ये, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ S, 2 इंटू S, ठीक है। सो Z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है इन द क्वेश्चन बोला है Z इक्वल्स टू 2S में ESW निकालो, एंड वी नो फ्रॉम द रिलेशन दैट Z इक्वल्स टू 2S, at Z equals to 2S, ESW will be twice of PD, and PD है तुम्हारा 4044, तो twice of PD will be 4088. ओके, क्लियर? तो इसमें देखो इक्वेशन यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर Z का वैल्यू समवेयर इन बिटवीन दिस वैल्यू, मतलब 4 और 5 के बीच में अगर रहता, तब तुमको ये इक्वेशन यूज करना पड़ता है। ओके, कहाँ गया? देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन जो डिराइव किए थे, देखो दिस वन, ठीक है। इफ योर Z वैल्यू समवेयर बिटवीन D/2 एंड S, तो ये इक्वेशन में मतलब एंटी लॉक करके ESW निकालना है। बट यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ही दिया है, D/2 करके दिया है Z का वैल्यू, सो दिस विल बी 2044। ओके, क्लियर? एनी डाउट? যে D বলেছে সেটা কি করে পেয়েছে Dটা বলো তো? কে D বললো? সিমন বললো না শ্যামাশ্রী বললো? সিমন ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ম্যাম, আমি ফার্স্টে বি বলেছিলাম 4088, এখন আচ্ছা বুঝে আচ্ছা গেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। হ্যাঁ, নাও টেল মি, what would be the center to center distance between the wheel if the clear gap between them is 70 mm and the radius of contact area is 150 mm? इसके लिए डायग्राम बनाओ। ये 2 व्हील है, ठीक है, डुअल व्हील असेंबली है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने बोला गया है इनके बीच में, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो बोला गया है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? इफ द क्लियर गैप बिटवीन देम इज 70, मतलब ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 70 क्लियर गैप, ओके, या इनर टू इनर वॉल्स के बीच में गैप भी बोल सकते हैं, दिस इज 70, ओके। तो ये है तुम्हारा 70 mm में है, ओके। एंड द रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब ये व्हील अगर यहाँ पे कोई छाप छोड़ेगा, इट विल लुक लाइक दिस, तो इसका रेडियस बोला है, अगर ये पूरा सेंटर से होकर जाएगा ऐसे करके, ठीक है, सो दिस रेडियस है कितना है, दिस इज दी ए, ओके, दिस ए इज हाउ मच, 150 mm, ठीक है, ये ए बोला है 150 mm का होगा, मतलब दिस गैप इज नथिंग बट दिस गैप बोल सकते हैं ना, तो ये गैप 370 millimeter. यस, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए, एंड वी नो ए इज इक्वल्स टू 150, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, 2a प्लस 70, ओके, या इसको डी भी बोलते हैं, ये जो इनर गैप को डी भी बोलते थे, ओके, 2a इंटू डी, तो 2a तुम्हारा कितना है, 2 इंटू 150 प्लस 70, तो 370, क्लियर? तो योर आंसर विल बी 370, क्लियर? तो या अब ये पढ़ो तो बोलो, फटाफट आंसर दो, ज्यादा टाइम नहीं है। इन अ 2 layer सिस्टम द लोड इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट लोड, ट्रू या फॉल्स? 2 layer सिस्टम में हमने क्या बोला था, लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सर्कुलर एरिया, तो वो क्या पॉइंट लोड है? ट्रू
ট্রু কি ফলস? আমি ট্রু হবে মানে 3/a করতাম। ঠিক আছে, नेक्स्ट की আছে इन बर्मिस्टर टू लेयर सिस्टम्स दिस आर द assumptions। अब बोलो इसमें से कौन सा करेक्ट है। टॉप लेयर इज फाइनाइट, ठीक है, हम क्या बोले थे, 2 लेयर होगा, ऐसा ऐसा, लेयर 1 लेयर 2, ठीक है। लेयर 1 का ये है हाइट h। मैम ऑल ऑफ द अबव। टॉप लेयर इज फाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये फाइनाइट रहेगा वर्टिकल में, तो ठीक है, ये भी ठीक है। टॉप लेयर इज इनफाइनाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे सॉरी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होना चाहिए, ट्रू, ये भी सही है। बॉटम लेयर इज इनफाइनाइट इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हाँ बॉटम लेयर यहाँ पे भी इनफाइनाइट, वर्टिकली भी इनफाइनाइट और हॉरिजॉन्टली भी इनफाइनाइट होना चाहिए। सो ऑल द अबव इज करेक्ट। ओके, सो द आंसर इज ऑल द अबव इज करेक्ट, ठीक है। ये assumption, all these are the Burmester assumptions। दूसरा क्या देखो, assumptions for the Burmester's approach, which one is correct? Material is in the pavement are isotropic, homogeneous and elastic, या pavement material in the pavement layers are isotropic, heterogeneous and Ma'am, elastic? A. Yes, answer is A, elastic, isotropic and homogeneous। okay, अब बोलो drainage layer is सब बेस। Subbase. हाँ सब बेस। ओके, डिजाइन लाइफ ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज, 15 years। इनमें से कौन सा क्या बोलते हैं एप्रोप्रिएट होगा। फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिजाइन लाइफ Ma'am, 15. 15 years। 15 years। ओके, इन इंडिया द फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज डिजाइन एज पर MSA, ASA, CSA। तो देखो इन द IRC देयर इज अ चार्ट, हमको n चाहिए था और CBR चाहिए था, राइट, एंड n का वैल्यू हम लोग पहले जो निकालते थे दैट इज इन, ये होगा परसेंटेज में CBR, ठीक है, ये पहले जो निकालते दैट इज इन CSA, बट फॉर डिजाइनिंग यूजिंग द चार्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। ओके, तो MSA इज द करेक्ट आंसर। टॉप लेयर ऑफ द पेवमेंट ये मस्ट बी मेड अप ऑफ मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, ट्रू मैम। ट्रू, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये इट इज कमिंग क्लोजर टू द ट्रैफिक लोड, सो प्रॉपर्टी शुड बी, क्वालिटी शुड बी गुड, so true। okay, the wearing surface of the pavement are made up of, flexible pavement are made up of बिटुमिनस मटेरियल। bituminous, right, or rigid will be cement concrete। in pavement this forms the foundation layer, foundation layer किसको बोलते हैं pavement में? मैम Ma'am, सबग्रेड। subgrade. Subgrade. Subgrade। okay, tandem axle means 1 axle, 2 axle, 3 axle, no axle, tandem 2 axle, axle। हाँ 2 axle। ओके, मतलब कि ये चक्का है, ये एक्सल, इसको एक्सल बोलते हैं। ओके, ये चक्का है व्हील, सो दिस इज सिंगल एक्सल। अगर ऐसे ही पीछे सॉरी ऐसे और एक एक्सल देंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइडम, सॉरी क्या बोलते हैं, टैंडम। ओके, टैंडम, और एक अगर रहेगा तो ट्राइडम। ओके, जब मल्टी एक्सल भी बोल सकते हैं। So answer is 2 axle। Burmester method is based on the test result of which test? कौन सा टेस्ट करना पड़ता है Burmester मेथड में? डेल्टा, प्लेट लोड टेस्ट। ओके, डेल्टा स्मॉल p जो निकालते थे ना हम लोग, दैट इज फ्रॉम प्लेट लोड टेस्ट। According to IRC 37 the standard axle load for the single axle is 8160. 8160। yes। अगर ये dual tandem axle होता तो मैम 14 देता है। 14,968। ओके, चलो ये करते हैं। डिटरमाइन द डिजाइन ट्रैफिक इन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल फॉर 4 लेन डिवाइडेड कैरेजवे हैविंग इनिशियल ट्रैफिक इन द, ये जनरली होता है आफ्टर द ईयर। ओके, यहाँ पे इन द ईयर कर दिया हम लोगों ने, दिस इज आफ्टर द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एज 5000 CVPD, 6% as a traffic growth rate per annum, 20 years of design life,
vehicle damage factor 5.2 and lane distribution as 0.75. don't get confused. देखो 4 लेन का जनरली क्या होता है, 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे का ये वाला वैल्यू होना चाहिए था 0.4, 40% होना चाहिए था, ठीक है, इफ इट इज नॉट गिवन, बट इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू, सो यूज दिस वैल्यू ओनली, ओके, तो ये ख्याल रखना। तो हम लोगों को तो जनरली डिवाइडेड कैरेज वे 4 लेन के लिए 40% हम कंसिडर करते हैं, मतलब लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स विल बी 0.4 फॉर दिस केस, फॉर 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे, ठीक है, इसके लिए ये जो 4 लेन डिवाइडेड कैरेज वे इसके लिए 40% पकड़ते हैं, लेकिन सिंस इट इज गिवन सो यूज दिस वैल्यू ओनली। तो लेट अस सी द इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन, n निकालने के लिए पूछा गया है। सो निकालो क्या क्या दिया है, कैलकुलेट, MSA में कन्वर्ट करना है, ओके। तो 365 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर इज 6% है ग्रोथ, ट्रैफिक ग्रोथ रेट, सो 0.06, ओके। एन इज गिवन एज 20 ईयर्स डिजाइन लाइफ, ए इज आफ्टर कंस्ट्रक्शन, वो वाला आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही है, 5000 CVPD, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.75 एंड व्हीकल डैमेज फैक्टर इज 5.2, LSF नॉट गिवन सो टेक इट एज 1। तो चलो करते क्या क्या है, आर है तुम्हारा 6%, ओके, एन है तुम्हारा 20 ईयर्स, ए है तुम्हारा 5000 CVPD, डी इज गिवन विच इज 7.75% या 0.75, F is given as 5.2 and LF not given, so assume it as 1। तो यहाँ से जो भी आएगा दिस, ये है 6% मतलब है 0.06, ओके, 0.06, ये निकालो तो कितना आएगा। मैम ऑप्शन गुला देखबो देखन तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन 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 ये है मैम 262 262, सबका आ रहा है 262, আসছে, अगेन आर डिवाइड बाय आर है, ओके, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 10⁻⁶, तो देखो 262 आएगा। आ रहा है, हाँ मैम। तो आंसर इज 262, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते, कितना बाकी है, और बाकी है बाबा। तो क्या है, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC इज, ओ ये 2 बार आ गया, दिस इज CBR मेथड, ओके। द इक्वेशन दिस वन इज वैलिड ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ CBR इज, क्या होगा बोलो, ये हम बार बोले थे, ये वाला कहाँ पे आ रहा है, दिस इज द CBR नॉट मॉडिफाइड, ओके, दिस इज CBR वैल्यू। तो ये हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दैट वैल्यू शुड बी लेसर देन कौन सा, 15% या 12%, 12%। your CBR value if it is lesser than 12% then only we can apply this method, okay। ये वाला कौन सा बोलो तो, किसी को याद है, ये जो है देखो फॉर्मूला में यहाँ पे दिया है, दिस फॉर्मूला, ये ठीक है, ये वाला कब अप्लाई है, व्हेन इट इज lesser than 12%, if it is greater than 12 so we cannot apply this method, okay, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, तो आंसर इज लेस देन 12%। अब ये वाला बोलो तो, कैलकुलेट द टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट इफ द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल इज 7%, व्हील लोड इज दिस मच एंड टायर प्रेशर इज दिस मच, सिंपली यूज दिस, अभी हम स्किप कर रहे, जंप कर रहे, ओके, सिंपली यूज दिस वाला, देखो P दिया है, प्रेशर दिया है, ठीक है, और CBR 7% दिया है, सिंपली यहाँ पे पुट करो एंड सी योर CBR वैल्यू इज लेस देन 12%, सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, कहाँ गया, इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे यूज करके T का वैल्यू निकालो, ओके, ये कैलकुलेट कर लेना, अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये वाला क्या होगा बोलो, IRC 37 redesign the CBR charts based on मैम डी क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एवरेज। yes ठीक है,
चलो थोड़ा ये सब तुम लोग देख लेना है, ओके। अब ये वाला बोलो तो, एज पर IRC 37 द ओनली थिकनेस ओनली द टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट कैन बी फाउंड आउट। ये बात है क्या? सिर्फ हम टोटल False. थिकनेस ही नहीं, फॉल्स। वी कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल लेयर थिकनेस आल्सो, ओके। दूसरा क्या है? अच्छा रिकॉर्डिंग होच्छिलो, हाँ। ये वाला बोलो, सिंपल। कैलकुलेट द टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट यूजिंग द इक्वेशन, जो था ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है। Not possible. नॉट पॉसिबल, क्यों? बिकॉज द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल इज 13%, तो ये ग्रेटर देन 12 है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट, ओके। तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, वो इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। फाउंडेशन लेयर सब ग्रेड, ये तो ठीक है, चलो खत्म। ओ तो खत्म हो गया ए तो ताड़ाताड़ी खत्म हो गया। ম্যাম 32 এরটা একটু মানে কোনটা গো? 32 32, हाँ बोलो, इसका आंसर क्या होगा? ব্রিটিশ লোড। मैम D cumulative standard actual। हाँ, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है, ঠিক আছে। ठीक है। तो इतना ही है, ये प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा उतना टफ नहीं है, सब पढ़ जो भी पढ़े हो क्लास में जो है उससे ही है, ओके। तो एंड ट्राई टू सबमिट इट हियर विदिन 6 PM টুডে। অ্যাটলিস্ট যারা প্রেজেন্ট আছো তারা তো সাবমিট করবেই, এটা তো এক্সপেক্ট করি আমি, ওকে। ম্যাম আর একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে এবার কি ইন্টারনালটা এই অ্যাসাইনমেন্ট বেসেই হবে? না তোমাদের আগেবার যেরকম দিয়েছে না গুগল ফর্মে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম এরকমই তাই তো? হবে, আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে। আছে। এরকম সাবমিট করতে হবে না, তোমরা ওখানেই লিখে দেবে আনসার, ওইরকম আনসার তোমরা মার্কসও আপডেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, ও ঠিক আছে। আজকে তাহলে এইটুকু করি আমরা, 2 মিনিট বাকি আছে, ওকে। Thank you मैम। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you मैम। ওয়েলকাম।